लाइक घर सिर्फ एक घर नहीं होता है, वो ओवरऑल पूरी प्रोसेस होती है, तो उसमें बहुत सारी लोग इन्वॉल्व रहते हैं। फिर जिस टाइम का आपने प्रॉमिस किया था कि आज के दिन आपको पोजीशन देना है, तो आपने आज ही के दिन पोजीशन दे दिया। सो जो कमिटमेंट है, जो मतलब जो वैल्यू है, हाँ, वो जो बहुत बात की अच्छा जो है। वैल्यू है, तो वो आपने रखी हमारी साइड से भी। तो वो एक एक्सपीरियंस अगेन, तो ये अगेन मुझे कॉन्फिडेंस दे रहा है कि हाँ, ये मेरा एक्सपीरियंस हाउस के साथ तो अच्छा है ही, बट ओवरऑल कम्युनिटी जो हमारी बन रही है, मतलब रिलेशन बन रहा है ना अपन लोग का, तो वो भी अच्छा रहेगा आगे जाके। I found it very, very, very pretty. The Garden City, it was written over there, and immediately I started taking video as well. The ambience, the greenery, everything is so perfect. New Trick Properties. Namaste everyone. I am Subhriti Sharma and I welcome you all here once again with us at Nutric Properties. And today we are having with us Mr. Narenj Solanki, Ms. Neha Solanki, Mrs. Rupesh Solanki, and Mr. Shivam Solanki with us. And they recently purchased a flat with us in our project called Eden Garden. And they all are here to share their experience and their insights. So let's hear from them. नमस्ते सर। Namaste. सर मैं पहले आपसे जानना चाहूँ कि आपके बारे में कुछ बताइए हमें। मेरा नाम नरेंद्र सोलंकी है। ये न्यूट्रिक वालों को जानकारी मिली तो हमने फ्लैट देखने आए थे। दीदी का रिजल्ट बन गया करता है कि यहाँ भी है, यहाँ है जी। तो फिर यहाँ देख के काफ़ी अच्छा लगा। अच्छा हाँ, सभी को पसंद आया तो यहाँ। मैम प्लीज़ आप बताइए आपके बारे में। Hi, my name is Neha Solanki, and I'm working in IT company as a HR professional in Bangalore. So yes, I came here today for the very first time, and I liked it. The atmosphere, the ambience is really nice over here. थैंक यू सो मच मैम। मैम आप थोड़ा बताइए आपके बारे में, आपका नाम, आप क्या करते हैं बताइए प्लीज़। मेरा नाम रूपेश है, मगर मैं तो हाउस वाइफ हूँ। जी। पर हमने यहाँ पे फ्लैट देखा तो अच्छा लगा। Simple and sweet. हेलो, मेरा नाम शिवम सोलंकी है। मैं एक आईटी प्रोफेशनल हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन बैंगलोर, वर्किंग इन बैंगलोर, एंड मेरा होम टाउन यहीं पे है। सो काफ़ी टाइम से हम लोग होम सर्च कर रहे थे, देन वी केम थ्रू दिस प्रॉपर्टी एंड नाउ लेट्स यू विल गेट टू नो। सर आई जस्ट वांटेड टू नो कि व्हेन यू स्टार्टेड लुकिंग Yeah. फॉर प्रोजेक्ट्स और प्रॉपर्टीज, सो when did the thing came in your mind ki okay now it's time to buy a home for myself, and how did you land up on Nutric then on? Okay, so like buying a home, it's not an easy thing, right? It will take a long time. So my mother actually aims to have her own house in late 30s, like in 35 and around 40s. So it's been from that time only we were searching, but due to some financial constraints and all those things were there, so we couldn't proceed at that time. Then like 1 or 2 year back, we started like thought it's the right time. We can check out properties and maybe we can plan. So at that time we came to know like all the things or all the projects were there in in Gwalior. So वहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स देखे, ऑलमोस्ट 20 के अप्रॉक्स हमने देखे होंगे। एंड देन जो 20 हमने देखे उसमें से 2-3 तो न्यूट्रिक के ही थे। तो उसमें से हमने देखा रीगल गार्डन, फिर ये ईडन गार्डन, तो ये पूरे प्रोजेक्ट्स देखे। तो थ्रू आउट द एक्सपीरियंस, व्हाट वाज द एक्सपीरियंसेस ऑलमोस्ट आउट ऑफ ऑल द प्रॉपर्टीज, सो दिस इज द वन वी थॉट लाइक जस्ट बाइंग एट अ फर्स्ट ग्लैंस कि दिस इज द वन वी वांट। सो दैट वाज द काइंड ऑफ एक्सपीरियंस एंड देन द प्रोसेस वेंट स्मूथ। Ma'am, as I heard from you that you came here for the first time. Yeah. So I would like to know the experience of yours. That what do you like? What is the ambience you think? Oh, when we were entering the premises, I found it very, very, very pretty. The Garden City, it was written over there, and immediately I started taking video as well. The ambience, the greenery, everything is so perfect. And when when you entered from the outside, you have some good vibes when you're entering the premises. So it is really beautiful and nice and pretty. मैम जब आपने पहली बार यहाँ पे अप्रोच किया था गार्डन सिटी को, ईडन गार्डन को, जब पहली बार आप देखने आए थे, तो उस समय पे आपका मतलब कैसा विचार था? उस वक्त आपको कैसे लगा कि सोसाइटी परफेक्ट है हमारे लिए? पहले मैं एक थोड़ा सा बताना चाहूँगा इसके बारे में। तो सबसे पहले हम इस रोड पे ही थे, तो मम्मी का कहना था कि इतना दूर कौन रहने आएगा यहाँ, तो क्यों? अरे अब बहुत दूर है ये तो। अच्छा।
लेना ही नहीं है तो क्यों टाइम वेस्ट करना, इतना दूर क्यों जा रहे हो। मैं तो गेट तक बोल रही थी यही बात, और अंदर आके आते ही एकदम से इतना पसंद आया कि फिर हमने सोचा कि यहाँ ले लेते हैं। अंदर जाके फिर ऐसा एहसास नहीं होता कि ये दूर है, बिल्कुल। वाइब अच्छी आती है यहाँ पे। One more experience I do want to share. Actually, we were going something all together. Jaurasi Mandir, I guess. Yes. So there we were going from the same way, and we were discussing. Oh wow, this house, this looks so pretty. Matlab, but we must be thinking this must be so expensive. But yes, we thought so that yes, someday we will buy the property from here. So, मतलब I also wanted to ask कि if you know our futures buyer have the same concept of when they think that this project is little outskirts from the Gwalior. So, what is your opinion about what is your say on it to the to our future buyers? ओके सो फ्रेंकली स्पीकिंग जिस जगह पे अभी हम रह रहे हैं वहाँ पे बहुत एक्चुअली अभी रिसेंटली अभी आई हैव स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट दैट कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रही है जिस एरिया में हम रह रहे हैं, और रिसेंटली बहुत ट्रैफिक बढ़ भी रहा है क्योंकि एवरीवन हैज़ देयर ओन व्हीकल, देयर 4-व्हीलर 2-व्हीलर। सो ट्रैफिक को हम अवॉइड कर सकते हैं इस एरिया में हम फ्लैट लेके, एंड प्लस यहाँ पे बहुत पीसफुल है, आपको कोई ऐसा कुछ नॉइज़ नहीं है, बहुत पीसफुल, आपको बहुत गुड वाइब्स, बहुत पॉजिटिविटी फील होती है। तो हाँ, ये बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं ऑफकोर्स ये आउटस्कर्ट में लेने के लिए प्रॉपर्टी। सो सर, आप क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन हुआ है आपका मेरे साथ, मतलब डॉक्यूमेंट्स के दौरान और बहुत सारी चीज़ों के दौरान, तो आपका ओवरऑल वो सारा एक्सपीरियंस और वो सारी जर्नी कैसी थी? मतलब स्टाफ का बिहेवियर, डॉक्यूमेंटेशन, ये सारी चीज़ें के बारे में थोड़ा बहुत अच्छे थे। आपसे ज़्यादा तत्पर है क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन के लिए तो आपने हमेशा सपोर्ट किया है, और जो भी डॉक्यूमेंटेशन हमें या जानकारी चाहिए आपने टाइम कर दी है। और अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और आपका स्टाफ और भी हैं जो जिनका काफ़ी कॉपरेशन रहा, इवन रजिस्ट्री के टाइम पे भी सब ने कॉपरेट किया सर। मैंने तो ऐसी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके स्टाफ से, आपसे या किसी के, काफ़ी अच्छे। क्योंकि सर जब हम लोग प्रॉपर्टी परचेस करते हैं तो हमारे दिमाग में एक कंसेप्ट बहुत मेजर रहता है कि क्या पेपर वर्क क्लीन है, सारी चीज़ें क्लीन होनी चाहिए। तो वो सारी चीज़ें आपको कहीं न्यूट्रिक में तो ऐसा कुछ फेस नहीं करना पड़ा? नहीं करना पड़ा। सो न्यूट्रिक का नाम आते ही मतलब वो है कि बिल्कुल क्लियर है। कोई भी सुनता है ना आईडी के नाम से, सब कहते हैं वहाँ तो बहुत अच्छा हुआ है। अच्छा है, तो इसलिए कहीं कोई ऐसा डाउट वाला काम नहीं था कि आप गलत जगह प्रॉपर्टी ले रहे हैं। बहुत जगह देखा हमने पर कहीं पसंद नहीं आया। मैम मैं ये जैसा आप बता रहे, मैं एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगी कि जब हम लोग एक प्रॉपर्टी परचेस करते हैं तो हम एक गुड अमाउंट उसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो हम लोग बहुत सारी जगह पे सर्च करते हैं जहाँ पे हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें उस कंपेयर करते हैं, प्राइसिंग हो गया, एम्बियंस हो गया, जगह हो गया, लोकेशन हो गया, बहुत सारी चीज़ें कंपेयर करते हैं। तो हो सकता है कोई और बिल्डर्स ने भी आपके वो चीज़ें मैच किया हो, बट समटाइम्स आपको ये भी लगा हो कि यार ये दूसरे प्रोजेक्ट से कंपैरेटिवली थोड़ा एक्सपेंसिव भी है, तो फिर भी ऐसा क्या था कि आपने न्यूट्रिक को ही चूज़ किया, बाकी बिल्डर्स का अगर कम भी था तो उसको जाने दिया कर? हाँ गए थे एक बिल्डर के यहाँ, एक तो देखते ही हमें बड़ा अजीब सा उनका नक्शा ही वो था, बिल्कुल पसंद ही नहीं आया है। यहाँ पे थोड़ा खुला खुला माहौल ज़्यादा है, वहाँ पे ना एकदम इतना चिपके वो बना दिए कि कंजेशन ना कहीं से हवा पास हो रही है ना कहीं खुला वो है एरिया, तो बिल्कुल ऐसे बने हुए हैं कि रोशनी नहीं है, तो वो पसंद नहीं आए। पर ऐसा तो फिर हम वहीं पे रह रहे हैं। और दूसरा पॉइंट इसमें ये भी है जो मैंने फेस किया है, सो व्हाट आई फेस इज कि देयर आर सेवरल प्रोजेक्ट्स इन ग्वालियर, राइट। सो उसमें जितने भी हम प्रोजेक्ट्स में गए तो उसमें उतना डिटेल्ड में डेटा नहीं है उस बिल्डर के बारे में, सो आई डोंट हैव दैट कॉन्फिडेंस लाइक हाउ इट विल बी आफ्टर like 5 years 10 years. And when I looked at this property, so there are like multiple in the city center, right? So at that time when I checked out those properties, so it's not look like it's 5 years 6 years old, it's perfectly looking fine from front, but I have not been through the inside, but its front it's not look like it's a very old property or something. So that gave me a much confidence. And about the process, like when we started, right, first time we came, all the sales executive persons and all the staff were very professional.
वेरी हेल्पफुल. सो एट दैट टाइम भी हमको कॉन्फिडेंस आया कि हाँ हम उसके साथ बढ़ सकते हैं. तो उस टाइम पे क्या हुआ ना, उस टाइम पे मैंने ये नहीं सोचा कि मुझे प्राइस कंपेयर करना चाहिए, बिकॉज जो एक्सपीरियंस मुझे मिला तो मुझे वो प्राइस सेटिस्फाई कर रहा था कि हाँ मैं यहाँ पे इतना इन्वेस्ट कर सकता हूँ, भले ही मुझे इस टाइप का उससे थोड़ा सा ज़्यादा सुपर बिल्डअप एरिया भी हो तो मैं उसमें कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता हूँ, बिकॉज दीज एक्सपीरियंस एक्चुअली मैटर्स. लाइक घर सिर्फ एक घर नहीं होता है, वो ओवरऑल पूरी प्रोसेस होती है, तो उसमें बहुत सारी लोग इन्वॉल्व रहते हैं, फिर लीगल आजकल आप तुमको पता ही है कितना हो रहता है, तो वो सब पॉइंट्स देख के वी फाइनलाइज दिस प्रॉपर्टी. Sir, as recently, Abhi, you have got the possession also. So, how's your opinion about that possession and everything? Is it on time? Because people normally have such kind of concerns in their mind. हाँ, so it is actually not on time, it's before time. So उसके लिए भी काफ़ी अच्छा रहा है. So एक पॉइंट और मैं हाईलाइट करूँगा. So like ये मैंने फाइनेंस कराया था, there are some documents need to required by the bank, which the Nutric one, like you people are not aware about that document, but still you process that thing and you gave the document within a week. So वो मुझे एक एक्सपीरियंस अच्छा लगा, वो आपके साथ अच्छा था. और फिर रजिस्ट्री की भी जो हमारा पोजीशन था, रजिस्ट्री था, ऑल थिंग वेंट स्मूथ. जिस टाइम का आपने बोला था कि उस दिन आप करा देंगे, उसी दिन आपने रजिस्ट्री कराई. फिर जिस टाइम का आपने प्रॉमिस किया था कि आज के दिन आपको पोजीशन देना है, तो आपने आज ही के दिन पोजीशन दे दिया. सो जो कमिटमेंट है, जो मतलब जो वैल्यू है, हाँ, वो जो बात की जो वैल्यू है, तो वो आपने रखी हमारी साइड से भी. तो वो एक एक्सपीरियंस अगेन, तो ये अगेन मुझे कॉन्फिडेंस दे रहा है कि हाँ ये मेरा एक्सपीरियंस हाउस के साथ तो अच्छा है ही, बट ओवरऑल कम्युनिटी जो हमारी बन रही है, मतलब रिलेशन बन रहा है ना अपन लोग का, तो वो भी अच्छा रहेगा आगे तक. Definitely, sir. Well, thank you so much for sharing this beautiful experience with us. And also, just wanted to ask one more thing. If you want to score us in the scale of 1 to 10, so what will it be for us? 10. मैम आप बताइए 1 to 10 में आप कितना स्कोर देंगे हम? ओके, नहीं हो सकता है. Of course, 10. No doubt about it at all. अगर आप एक वर्ड में कुछ बोलना चाहेंगे न्यूट्रिक के बारे में तो आप क्या बोलेंगे? Excellent. Positivity. Okay, positivity and excellent. Well, thank you so much. Thank you for giving Thank time. you. Thank you. Thank you. For being here. Thank you. Bye.